أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ كيف حالكن يا أخوات؟ نحن بخیر الحمد للہ۔ نحن بخیر بخير. الحمد للہ۔ الحمد للہ على كل حال. اچھا جی، اب ہمیں نحنو کا بھی پتا ہے، بی کا بھی پتا ہے اور خیر کا بھی پتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ الحمد للہ. تو یہ جو میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ جو ہم قرآن کی عربی سیکھیں گے، بہت ساری ہماری اسپوکن والی وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے گی، دعاؤں کا پتہ چلتا جائے گا، اسی طرح سے ہمیں احادیث کا پتہ چلے گا، اور کہیں بعض دفعہ دیکھا کریں چیزوں کے اوپر بھی تھوڑی تھوڑی عربی لکھی ہوتی ہے نا، کاسمیٹکس میں دیکھا کریں تو وہاں سے بھی ہمیں الفاظ سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پھر بڑی کامیابی ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. آج ہماری سورہ ہے سورہ الکافرون، اور سورہ الکافرون الحمدللہ سے جس لیسن میں سے ڈالا گیا ہے یا جس طرح سے یہ کورس ڈیزائن ہوا ہے، اس مقام پر آتے الحمدللہ سے ہم جو سیکھ کر آئے ہیں افعال اور ضمائر، اسی طرح سے اسما، یہاں پر اسے ہم اپلائی کرنا سیکھتے ہیں الحمدللہ سے. تو سورہ کافرون کو دیکھیں گے، اور فعل امر نہیں ہم نے شروع کیا ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. قرآن مجید میں جہاں بھی امر کا حکم ہوا ساتھ ساتھ مناہی کا بھی بتایا گیا. امر، اچھا دونوں میں جو ایک چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں درخواست ہے یا دعا ہے، ٹھیک ہے، حکم. فعل امر میں کسی کام کے کرنے کا، اور نہیں میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست ہوتی ہے. آج ہم باب نون سے انصر اذکر عبد اخلق دیکھیں گے، اور آسان آسان طریقے بھی دیکھیں گے کہ ہم حمزۃ الوصل پر حرکت لگانا کیسے سیکھتے ہیں. 8 نئے الفاظ ہم نے سیکھنے جو قرآن مجید میں 1031 مرتبہ آئے، 1031. چلے ہم یہاں پر رکتے تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. صرف مجھے 1 منٹ چاہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی،
अब हम देख लेते हैं, मुख्तसर सा तारुफ देखते हैं सूरह अल काफिरून का। मक्की सूरत है और ये सूरत मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के मुशरिकीन ने ये देखा कि इस्लाम तो फैलता जा रहा है और उनका दीन कमजोर होता जा रहा है। और आबाओ अजदाद की जो अपने बड़े बुजुर्गों के रसूमात, उनके जो आ, आमाल होते हैं ना, जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, उसको छोड़ना या उसे मिटते हुए देखना बड़ा तकलीफ दे काम होता है। तो मुशरिकीन ने ये देखा कि उनका तो दीन दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है जबकि इस्लाम फैलता जा रहा है। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए हम कोई सद्देबाब करें। उन्होंने इस फैलाव को रोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशकश की कि 1 साल मुशरिकीन सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे, जबकि दूसरे साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी बुतों की इबादत करेंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ इस बात का बिल्कुल साफ जवाब दे दिया कि अकीदा और ईमान में मसालिहत की कोई गुंजाइश नहीं है। इसको बहुत गौर से समझ लीजिए, देख लीजिए कि सूरह अल काफिरून बेस्ड किस चीज पे है? अकीदा और ईमान। ठीक है, दोनों, इन दोनों की बात हो रही। अकीदा और ईमान में मसलहत की गुंजाइश नहीं है। अच्छा जी, अब जब ये मुशरिकीन ने जो इस तरह से एक प्लान बताया या जिस तरह से इन्होंने एक पेशकश रखी थी, इसे हम जब अभी सूरत को दोबारा से देखेंगे तर्जुमे के साथ और शरह के साथ, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से अल्लाह ताला इन पर गजबनाक होके इनसे खिताब कर रहा है। अच्छा जी, अपनी जिंदगी में कैसे लाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले हमने क्या सीखा था मुअव्वज़तैन के बारे में, किसी को याद है? कि वो अपने हाथों पर फूंक कर जिस्म पर फेरते और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से हमने ये भी तो नमाजों के बाद वाला भी तो सीखा था ना, वो फिर अब मेरे जहन में नहीं है, सॉरी। फजर और मगरिब के फजर और बाद मगरिब के बाद। तीन तीन तीन, तीन एक बार। और बाकी और जो नमाजें, जोहर असर इशा के बाद एक एक बार। हाँ, एक जोहर बार। मैंने नहीं लिखा, इशा के बाद। ठीक है, बाद पर गौर करें, के बाद बताया था। और अब बताया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर और मगरिब की सुन्नतों में, ठीक है, अब नमाज के अंदर पढ़ने की बात हो रही है, सूरह अल काफिरून और सूरह अल इखलास पढ़ा करते थे। अच्छा जी, अब सुन्नत की पैरवी करना, सुन्नत को जिंदा करना, इसका भी अजर सवाब मिला करता है। तो अगर तो आप पहले से इस रूटीन के साथ ही नमाजें अदा करते हैं तो वेल एंड गुड। और अगर अभी आपने इसको आज फर्स्ट टाइम देखा है, बाज बार क्योंकि अहादीस का मुताला हम वैसे नहीं करते जैसे हम कुरान पढ़ते हैं या हम कुरान की तफासिर वगैरह देखते हैं, तो बहुत सारी अहादीस हमारे लिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम हमने देखी होती हैं। जैसे मैंने भी जब ये कोर्स किया था तो मैंने फर्स्ट टाइम इसको इस तरह से देखा था कि ये सुन्नत है कि सूरह अल काफिरून जब आप सुन्नतें अदा करें फजर की और मगरिब की, तो पहली रकत में सूरह अल काफिरून पढ़िए और दूसरी में सूरह इखलास। एक और जगह है जहां पर इसी तरह से ये तरतीब बताई है। किसी को याद, किसी को पता है, मतलब मालूम है किसी को? आप में से जितने हम लोग बैठे, किसी ने उम्रा या हज किया हो? जी, किसी ने उम्रा या हज किया है? अच्छा, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अच्छा जी, मैं आप लोगों से ये पूछ रही हूँ जी कि जी। आप, आवाज आ रही है आपकी? जी हाँ हाँ, तो आप मुझे हाँ या ना करके बता सकते हैं किसी ने हज या उम्रा किया है? अगर नहीं किया तो अल्लाह जी ताला जल्द अज जल्द बुलाए आपको, और अगर जी, किया है तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र किया है लेकिन पता नहीं है जो आप अच्छा बता चलिए, रहे कोई हैं। बात नहीं, मैं अब आपसे ये टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं आपको बताने लगी ताकि ये जी शौक जी मैं बढ़े, ही कर रही हूँ। ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम जाएं तो आपको ये बातें याद हो, अल्लाह ताला हमें बार बार बुलाए। ठीक है, इसको ना जब आप इंशाल्लाह। मेरे से सवाल पूछूं, आप इसको ये ना समझा करें कि मैं आपको टेस्ट कर रही हूँ। मैं आपको बार बार खुद भी बताती हूँ, हमने कभी इन चीजों को इस तरह से सीखा ही नहीं था। हमने भी बिल्कुल आप लोगों की तरह जीरो से सीखना शुरू किया था। ये, और ये हमारी समझ लें कि खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें सिखाने सीखने का मौका दिया, कि सीखना और सिखाना अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान कर दिया।
ठीक ہے، تو جب ہم مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہم اگر سمجھ لیں کہ 2 نوافل ہم نے ادا کرنے ہیں اس میں سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر ہم 2 نوافل ادا کریں شکرانے کے، تو اس میں دونوں میں اس طرح سے ترتیب کر لیتی تھی کہ اگلی جو 2 میں نے رکعت پڑھنی تھی اس میں یہ کہ سورہ الفلق اور سورہ ناس پڑھ لیتی تھی. لیکن یہ کہ یہ بھی مسنون ہے کہ مقام ابراہیم پر جب آپ نوافل ادا کریں تو ایک رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھیں. اور اچھا مختلف احادیث ہیں، ٹھیک ہے، یہ اب ترمذی نسائی وغیرہ میں اس طرح سے بتائیے ترتیب. پھر مزید آپ احادیث دیکھیں گے تو اس میں یہ کہ آخری کی جو 6 صورتیں ہیں، 3 پہلی میں 3 دوسری میں، تو احادیث کا بھی مطالعہ کرتے رہیں گے ہم، جیسے 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 ہمیں پتہ چلتا جائے تو ہم اپنی نمازوں میں ان چیزوں کو اس ترتیب سے لے کے آتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں بالکل کوئی شرمانے کی کوئی ہیزیٹیشن کی بات نہیں ہے. ہمیں علم نہیں تھا، کوئی بات نہیں، وہ وقت گزر گیا. ہم کہتے ہیں نا ماضی میں تبدیلی ممکن نہیں، اب ہمیں پتہ چلتا جا رہا، ہم اس کو اس طرح سے اپنی زندگی میں لانا شروع کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ اب رات کو سوتے وقت کی بھی بات، آپ رات کے اذکار وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں اس کو بھی شامل کر لیں. ٹھیک ہے، اور یہ سنتیں ہیں نا، ان پہ اب جیسے یہ نہیں کہ یہ فرائض کی طرح ہے، اگر جیسے بندہ بشر ہے بھول بھی جاتے ہیں تو یہ بھی نہیں سمجھنے لگ جانا کہ پتہ نہیں مجھ سے ایک بہت بڑا کوئی فرض چھوٹ گیا. لیکن کوشش کرتے رہیں گے نا تو زبان کو عادت ہو جاتی ہے، ہمیں خود عادت ہو جاتی ہے. جب آپ پڑھیں اللہم بسمک اموت و احیا، آپ سورہ ملک پڑھیں ساتھ ہی یہ آپ پڑھ لیں سورہ کافرون پڑھ لیں. پڑھنے سے کیا ہوگا کہ تم شرک سے بری قرار پا جاؤ گے. ٹھیک ہے، ابھی جب ہم اس کو فردر دیکھیں گے ایک ایک لفظ کو ایک ایک آیت کو تو ہمیں مزید سمجھ آتی جائے گی. اچھا جی، قل یا ایوہ الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو. اچھا جی، کل بھی ہمارا پڑا ہوا یا ایوہا ایوہا اور یا، یہ ہم نے ایک سلائیڈ پہ دیکھے تھے کہ تینوں کا معنی اے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور الکافرون کیسے ہے؟ کافرونا کافرینا، جیسے ہم نے کہا مسلمونا مسلمینا. یہ بلکہ پی ابھی ہم نے انشاءاللہ اگلی 1-2 کلاسز میں سیکھ بھی لینی ہے کہ کافرون کیسے بنا ہے. ٹھیک ہے، اور واو نون یا نون والی جمع سے اب تک ہم واقف ہو گئے ہیں. تو یہاں پر ڈائریکٹ خطاب ان لوگوں سے کہ جنہوں نے یہ والی پیشکش رکھی تھی. کہہ دیجئے، کل ہم پڑھ کے آئے ہیں، کل ڈائریکٹ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کے بعد باقی سب مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ کہہ دیجئے اے کافر. اور تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ بہترین انداز سے. ٹھیک ہے، یا ایوہا اور یا پھر ایوہا کو دیکھیں پھر یا ایوہا کو دیکھیں. سب سے زیادہ یا ایوہا قرآن مجید میں یوز ہوا ہے، لیکن معنی تینوں کے صرف اے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، اردو میں جب معنی کرتے ہیں جیسے آپ دیکھیں یا قوم، اس کے بعد آپ دیکھیں ایوہ النبی، اس کے بعد یا ایوہ الکافرون، یا ایوہ الذین آمنوا، یا ایوہ الناس. یہ ہمیں بار 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 نظر آتا جائے گا. اس پر ہم نے بات کر لی کہ اگر کافرون سے کافرونا ہے تو کافرن کافرین کی جمع کافرینا ہوگی. اور کافر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنے والے کو، چھپانے والے کو، کفر کرنے والے کو. ایک ایک لفظ کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں قرآن مجید میں یا عربی زبان میں. اچھا جی، اس بات کو میں سے سمجھتے ہیں، جب آپ چھوٹے تھے آپ کے والد آپ کے کسی بھائی یا بہن پر غصہ کر رہے تھے تو آپ باقی سب بہن بھائی بھی چوکس ہو جاتے تھے نا، بلکہ کوشش کرتے ہیں ہم کہ ایسے کام کریں کہ اچھا اب جو ہمارے بابا ہم سے خوش ہو جائیں. تو اس جو وعید کو، اس غصے کو ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ اب دیکھیے اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے، اب ہمیں بھی فوراً چوکس ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے شرک سے بری رہنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے ہمیں منع ہونا ہے. اچھا جی، کافر کے معنی انکار کرنے والا، یعنی کہ جو حق بات پہنچنے کے بعد بھی اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کر دے. یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے صرف نہ صرف، ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. اور ہم یہ جب سورہ بقرہ پڑھیں گے نا تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہم یہ بھی دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانتے تھے، جیسے کوئی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہو.
اور यहाँ वहां पर हम इंशाल्लाह मजीद भी कुछ चीजें सीखेंगे कि किस तरह से सिर्फ मतलब उनकी जिद क्या थी, किस वजह से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी मोल लेते थे। वरना तो कुरान मजीद में इसके अलावा कहीं भी आम तौर पर गैर मुस्लिमों को या अय्युहल काफिरून से नहीं बल्कि या अय्युहन नास कहकर पुकारा गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अल्लाह ताला बहुत नाराज है, अल्लाह काफिरों पर उनके शिर्क की वजह से नाराज है। तो हमें भी चौकन्ना होकर शिर्क से बचते रहना है। तो अब जब आपने सूरह काफिरून पढ़नी है, तो जब आप कहें कुल या अय्युहल काफिरून, तो आप समझे कि यहाँ पर अल्लाह ताला काफिरों पर बहुत गजबनाक है, अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से मुखातिब किया है कि या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो। अच्छा, काफिर लफ्ज को ना हम अलग से भी देखते हैं कि ये कोई बुरा लफ्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने काफिर लफ्ज को मुसलमानों के लिए भी इस्तेमाल किया कि वो तागूत का कुफर कर दें, यानी कि इनकार कर दें, ठीक है। हर मुसलमान भी काफिर है, मुनकिर है। किसका मुनकर है? जैसे हम बुतों की पूजा नहीं करते, ठीक है, इसी तरह से हम काला जादू तागूत वगैरह, ये हम इस चीज की बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया तो हम मना है, हम इसका इनकार करते हैं, ठीक है। अगर काफिर कोई खुद बजाते खुद अगर काफिर कोई बुरा लफ्ज होता तो अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए इसे कभी भी इस्तेमाल ना करता। और अगर मैं कहूँ आपसे कि इसका एक और माना भी है सूरह तौबा में, काफिर किसान को कहते हैं, ठीक है। अब किसान को क्यों कहते हैं? क्योंकि किसान क्या करता है, ये मिट्टी के अंदर बीज छुपा देता है ना, तो छुपाना भी, छुपाने वाले को भी काफिर कहते हैं। तो काफिर जो अब तक हमारे जहन में आता था, जब जैसे अब मैं अपनी बात भी करूं तो ये ऐसे लगता था कि जो बुतों की पूजा करते हैं, जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, बस उसको काफिर कहते हैं। तो हर लफ्ज जो अरबी का है, बड़ी इसमें फसाहत बलागत है। और जब हम इंशाल्लाह ये अपने ग्रामर के कोर्सेज करें, इसके साथ साथ जब बलागा का कोर्स करेंगे इंशाल्लाह, तो हमें मजीद बातों की समझ आएगी कि एक तरह के अल्फाज थे लेकिन कहाँ कहाँ कौन सा लफ्ज अल्लाह ताला ने क्यों यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक दुआ कर लेते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमा दे। अच्छा, एहतिसाब कैसे करना है? कितनी दफा मैं अपनी अना ख्वाहिश और कुब्र की वजह से सच को ठुकरा देती हूँ, या मैं फौरी तौर पर इसे कबूल नहीं करती। अच्छा, मैंने एक जगह पे कहीं सुना था या पढ़ा था कि जब आप कोई बुराई करते हैं ना, तो उसके जो असरात कह लें या उसकी जो बुरी बातें, वो किसी ना किसी के जरिए, चाहे अब वो अब सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो या आप किसी के मुंह से सुन लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक दफा हमें जरूर चौकन्ना किया जाता है, और बाज दफा हम जानते बूझते भी बहुत सारी चीजों को इग्नोर मार जाते हैं ना। तो अल्लाह ताला की तरफ से जरूर ये इंसान है ना, हम पर अब वहियां नहीं उतरनी, हमें इल्हाम होते हैं। गौर कीजिएगा हर इंसान के साथ, क्योंकि मेरा आपका रब अल्लाह ताला हर हर मखलूक का बड़ी मोहब्बत से ख्याल रखने वाला है। तो जरूर बिल जरूर ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं, बस हम अपनी लाइल्मी की वजह से या बाज दफा जानते बूझते भी हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो अब ये जो माजी था गुजर गया, इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं। हम अपने आज को बेहतर बना सकते हैं, हम अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। इस्तिगफार कीजिए, अल्लाह ताला की तारीफ कीजिए और बड़ाई को बयान करने का और खुद को तरबियत करने का प्लान बनाइए। अच्छा जी, अना और रिवायात को मानने के नुकसानात दूसरों को भी बताने हैं, ठीक है। सिर्फ अपना सीख लेना काफी नहीं है। अल्लिम, ये हमें लफ्ज बता रहा है कि सिखाइए, सिर्फ अपना सीख लेना काफी नहीं। अब है ला आबुदू मा ताबुदून, ला आबुदू। हमने बड़ी आसान सी एक बात सीखी थी जब हमने जिस दिन मुदारे शुरू किया, हमने कहा था कि माजी की नफी मा से, मुदारे की नफी ला से। आबुदू हमने कहाँ पर देखा? हमने आबादा जब टेबल मुदारे पर किया तो हमने कहा आबुदू, मैं इबादत नहीं करता या नहीं करूंगा। यहाँ पर मुदारे है, मुदारे की नफी ला से हो रही है। ला आबुदू, नहीं मैं इबादत करता। मा ताबुदून, माँ के हमने तीन माना सीखे थे, और मोस्टली जब दरमियान में माँ आ जाता है तो ये जो वाला माना देता है ना, फिर ये जो जिसकी, ये हमारी उर्दू की रिक्वायरमेंट होती है तर्जमे की, कि हम इस किस तरह से जो को या जिसको यूज करें। इसके बाद ताबुदूना, फिर से हमारा टेबल, उसमें सामने का सीगा मुदारे का देखिए, ज्यादा लोगों का
तुम सब इबादत करते हो या करोगे। तो अब यहाँ पर हमें करते वाला तर्जुमा चाहिए। नहीं, मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। तजवीद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, यहाँ पर हमने 4 to 5 काउंट की मद बनानी है, ठीक है। तो ला आबुदु मा ताबुदून, इस माँ को देखें, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 काउंट देने हैं। अब इसमें जब हम अगली आयत पढ़ते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। हमारी तजवीद की क्लास तो नहीं है ये, लेकिन ये कि हम इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा देखते जाएंगे, ताकि अगर इसमें से कोई हमारी गलती हो रही है, क्योंकि ये वो सूरा है जो हमने बार बार पढ़नी होती है ना, तो उनको जरा हम बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा जी, ताबुदून, नाबुदू, आबिद, माबूद, इससे हम याद रख सकते हैं आबादा के टेबल को, जो जिसकी हमने देख लिया। अच्छा, ये जो आपको बार बार दिखाया जाता मन के 2 माना, माँ के 3 माना, सिर्फ इसलिए कि हमें बहुत अच्छा सा याद हो जाए। माफी ही नहीं है इसमें। और जैसे वर्ड 2 तरह से इस्तेमाल इंग्लिश में होता है, माँ के भी जो वाले माना जब आ जाते हैं, इस्तेफाम वाले आते हैं, तो हम इसको इसी तरह से देखा करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, या मैं वो कर रहा हूं जो आपने मुझे करने के लिए कहा। जैसे आई एम डूइंग वट यू टोल्ड मी, या फिर व्हाट आर यू डूइंग। तो जो माना हमें अल्फाज में समझ आ जाता है कि अब यहाँ पर इस वर्ड का माना हम क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इंशाल्लाह आहिस्ता 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 जैसे हम समझते जाएंगे, माँ के बारे में भी याद होना शुरू हो जाएगा। माँ इस्म का, आपका नाम क्या है, या जो हमने मुदारे के साथ नफी सीखी है, ठीक है। माँ, इसको अबद तुम, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद रख रख के देख लेंगे कि किस तरह से हमने, इसी तरह से जो वाला माना हमने मिन शर्री मा खलक में भी सीख लिया था, ठीक है। माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है। इन बस इनको ना फ्रेज की तरह याद कर लेंगे या समझ लें, बस बहुत उसको रटने की भी जरूरत नहीं होती, समझ आना शुरू हो जाते हैं। अभी समझ नहीं आई है अगर बहुत ज्यादा, तो इंशाल्लाह इसको हमने कुरान पाक में भी इतनी दफा पढ़ना है, जब हमने अगले कोर्सेज करने, तर्जुमे करने हैं, तो इंशाल्लाह हमें इन चीज़ों की समझ आती जाएगी। ताबूदूना को हम देख चुके, अपनी टेबल में से जरूर देखा करें कि मेरा ये वाला लफ्ज कहाँ टेबल में मौजूद है। तो यहाँ पर इस आयत मुबारका में हमें 2 अपने सीगे मिल गए, अपनी तरफ वाला सिंगुलर वाला और सामने की तरफ वाला जमा का। अच्छा जी, और हम बार बार सीखते हैं इलाहा के 3 माना, रब के माना। तो इबादत के 3 माना क्या है? मोहब्बत और अकीदत के साथ पूजा और परस्तिश करना, ठीक है। अताअत फरमा बरदारी करना। अब्द होता है ना, अब्द गुलाम को कहते हैं, बंदे को कहते हैं, तो गुलामी करना। अच्छा जी, अब आप देखें, मोहब्बत और अकीदत के साथ इबादत किसकी की जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की। इताअत और फरमाबरदारी किसकी करनी है? अल्लाह ताला की। गुलामी किसकी करनी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। तो तीनों मानों में सिर्फ और सिर्फ ये जो काम है अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की ही इबादत होनी है, ठीक है। अकीदे के मामले में कोई मसालहत की गुंजाइश नहीं। हमने सूरह इखलास में देखा कि अल्लाह ताला जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में, जैसे हम ये फिंगर टिप्स पर आपको बताते हैं, आपने इसी तरह से इन सूरतों को याद करना है, ठीक है। कि अल्लाह ताला सिर्फ जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में, 4 बातों में वाहिद व यकता है। जात में कैसे? वो किसी का बाप नहीं, किसी का बेटा नहीं। और सिफात में वही सबकी सुनने वाला, देखने वाला। उसमें अब सो और जितनी भी अल्लाह ताला की सिफात आप देखिए, वो सिफात किसी और में मौजूद नहीं हो सकती। सजदे का हक ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। अल्लाह ताला के इख्तियारात, कानून देने का इख्तियार उसी को है। अच्छा जी, ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, कोई इसमें से खिताब नहीं कर सकेगा, इल्ला सिवाय मन अजिना लहु रहमान, जिसको रहमान इजाजत दे। सफ दर सफ खड़े होंगे। कौन खड़े होंगे? रूह और मलाइका, यानी कि रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सब सफ दर सफ खड़े होंगे, लेकिन किसी को एक को खिताब की इजाजत नहीं होगी जब तक कि अल्लाह ताला हुक्म ना दे दे। सूरह नबा की भी तफसीर जरूर देखें, बल्कि आखिरी पारा जो है ना, इसमें बहुत हम सीखते हैं, खासतौर पर तौहीद के पहलू को। अच्छा जी, इसके बाद है इसकी मुख्तसर सी शरह, जिसको मैं पहले दरवाजा खोलूंगी। सॉरी, आप लोगों को बार बार मुझे डिस्टर्ब करना पड़ता है, सब सोयत हैं, मुझे ही उठ के खोलना है।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश में और हम मुसलमान परेशान। अब आजकल के जो हालात हैं, अगर आप लोग पाकिस्तान में ही रह रहे हैं तो बच्चों को छुट्टियां वगैरह भी हो गई ना, ऑयल के मिसाइल जो भी हैं, तो ये मुसलमानों को असल में चैलेंजेस जो दरपेश है, सबसे बड़ा मसला है कि इस्लाम के सभी दुश्मन हैं और हमने अमल ना करके खुद को भी अपना दुश्मन बनाया हुआ है। खास तौर पर इख्तियारात वाले अकीदे को लेकर तो बहुत ही ज्यादा मुसलमान परेशान हो जाते हैं, बल्कि परेशान मुसलमानों को किया जाता है। पूरे ईमान और यकीन के साथ इस दिन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जर्रा बराबर भी एहसास कमतरी के बगैर इस्लाम पर अमल कीजिए। हम इस्लाम को खुद समझेंगे ना। और देखिए, ये बदकिस्मती हमारी सिर्फ ये है कि क्या बताया जाता है कि यहूदियों के बारे में जिस तरह से कुरान में लिखा गया वो आज बिल्कुल वैसे है। क्या मुसलमान वैसे रहे हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? हम बदल सकते हैं ना, कि जो हमसे हो गई माजी में गलतियां, उन पर तौबा भी करनी है और आइंदा से उन गलतियों को ना करने का पुख्ता अहद भी करना है। अब ऐसे अच्छा तस्वुर में लाएं कि ऐसे दुश्मनों को मुखातिब करके आप ये आयत पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि मैं नहीं इबादत करता उसकी जिसकी तुम सब इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। मैंने तजवीद का एक छोटा सा पॉइंट पीछे बताया था ना, उसको यहाँ भी देखिएगा। वहां माँ पर 2 काउंट थे, लेकिन अब ये देखिए, ये एक बड़ी मद भी बताई हुई है ना, यहाँ पर आपने 4 to 5 काउंट से लंबा करना है। पढ़ने की तरतीब भी ऐसी करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये मजीद हमें तजवीद के भी रूल समझ आते जाएंगे। और ना तुम, अंतुम, ठीक है, हमने ये शुरू में ही सीख लिया था, पहला टेबल। और नहीं तुम इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ठीक है, अब ये जो माँ, ये नफी वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने एक बात सीखी थी कि माजी की नफी माँ से होगी। अब हमने अगर पीछे माँ देखा है, कहीं पर हमें उसकी नफी वाला माना नजर आया था, तो गौर कीजिएगा, वहां कहीं हमने उसको पढ़ा होगा माजी के साथ, तो माजी की नफी माँ से। लेकिन ये ला वाली बात हमें अभी आज हमने देख ली कि ला आबुद, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो माँ है, ये नफी वाला नहीं है। और इसका कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ी हेल्प तो तर्जुमा करेगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हमें छोटा सी एक ये बात समझ आएगी, माजी की नफी माँ से, मुदारे की नफी ला से, तो इस तरह से भी हमें थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू होता जाएगा जैसे जैसे हम कोर्स आगे आगे बढ़ते जाएंगे। कोर्स 1 के बाद 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे, इंशाल्लाह ये चीजें हम समझने वाले हैं अगले अगले कोर्सेज में। अच्छा जी, अंतुम को हमने भूलना नहीं है, हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नहनु, ठीक है। अब यहाँ पर हमने टुकड़ों को भी साथ साथ देखते जाना है। हुआ ला अंतुम, तीनों अलग अलग चीजें, ठीक है, जुड़ी भी नहीं हुई, नजर भी आ रही है अलग अलग और है भी अलग अलग। अच्छा जी, जैसे हमने काफिरून की बात की, इसी तरह से आबिदुन से आबिदूना, आबिदन आबिदीन से आबिदीना। और ये तो हम वैसे भी इसका तर्जुमा जब देखते हैं, करने वाले वाला तर्जुमा, कुफर करने वाले, इबादत करने वाले, जैसे आबिद इबादत करने वाला, शाहिद गवाही देने वाला, खालिद हमेशा रहने वाला। तो ये जमा है, जैसे आबिदूना इबादत करने वाले, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी देखते जाएंगे ताकि हमें समझ आ जाए। अच्छा जी, माँ शुरू में आ जाए तो मोस्टली क्या वाला माना देता है? जैसे माँ दीनू का, ठीक है। अब मोस्टली क्या है कि मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा होगा, एक खिड़की खुली रखनी है क्योंकि एक्सेप्शंस आनी है। अब हम देखते हैं कि माँ दीनू का, माँ इस्मू का, लेकिन वहीं पर माफी ही नहीं है इसमें, वो भी देखते हैं ना। तो मोस्टली क्या होगा कि जब आएगा माँ, तो ये क्या के माना देगा, और आयत के दरमियान में आ जाएगा तो जो वाला माना देगा, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा से हमने देख लिया कि आबुदू कहाँ से आया। इस गलत फहमी में नहीं रहेंगे कि तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो। शिर्क के साथ अल्लाह ताला की इबादत मकबूल ही नहीं है। ये नहीं होगा कि एक साल अल्लाह की इबादत होगी, अगले साल बुतों की होगी, तो उनको फिर ये बराबर हो जाएगा। समझा जाएगा कि शिर्क के साथ भी जो एक साल अल्लाह ताला की इबादत की थी वो कबूल होती जाएगी। सारे मजाहिब एक जैसे नहीं हो सकते। वो इबादत जिसमें शिर्क की मिलावट हो, अल्लाह को हरगिज कबूल नहीं है। वाला अना, ठीक है, अना को भी लंबा नहीं करना है। मोस्टली यहाँ पर ना एक छोटा सा दायरा बनाया हुआ होता है। आज मैं आपको छोटी छोटी सी साथ बता देती हूँ, तफसील तजवीद की भी, ठीक है। ऐसा इसको कहते हैं सिफर मुस्ततील। तो अगर तो अना पर रुकना है, वाला अना, फिर 2 काउंट करेंगे, पढ़ रहे ना रवानी,
तो फिर हम यहाँ पर इसमें बिल्कुल भी कोई मद नहीं बनाएंगे। जैसे दरवाजा नो को आप कहें मैं, तो आप थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। आप कहें मैं नौरीन, तो फिर इसको लंबा नहीं करते ना मैं को, बस उस तरह इसको समझ लें। वाला अना आबिदुन, इबादत करने वाला, मा अबद तुम, जिसकी तुमने इबादत की। ठीक है, मैं और ना मैं इबादत करने वाला हूं जिसकी तुमने इबादत की। अच्छा, अब ये बीच में भी आ गया ना, दरमियान में भी आ गया। हमें बहुत सी जगहों पर शुरू ही ऐसे नजर आएगा, जैसे माँ खाला का, उसने कुछ पैदा नहीं किया, तो वो शुरू में आ जाता है। ठीक है, जिसमें वो हम कह सकते हैं कि माजी की नफी माँ से हुई है। अब ये जो दरमियान में आ जाता है, इसमें जो वाला और जिस वाला माना आ जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम आयात के तर्जुमे करेंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि कौन सा माँ किस चीज के लिए यूज हुआ है। नफी के लिए, या फिर ये जो वाला माना देगा, या फिर ये क्या वाला माना देगा। अना कहाँ से आया, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। ठीक है, इसको भी हमने साथ साथ समझते जाना है। बाकी सारी चीजें अभी वही बताई जा रही हैं, सिर्फ ये जो अबद तुम यहाँ पर आया, ये माजी वाली साइड से आ गया। ठीक है, अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम और अबदना। अब साथ साथ हम सीख के आए हैं पिछली 2-4 क्लासों में, या हमने लेसन नंबर 9 से अपने अफाल शुरू किए थे, अब हम उनको अप्लाई करना भी सीख रहे हैं। जब हम समझे ना ग्रामर करते हुए कि ये अफाल हमारे कहाँ काम आने हैं, तो सूरह काफिरून में हम इसको इस्तेमाल करते हुए भी देख रहे हैं। शिद्दत से इनकार कि अब तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं हो सकती। अब इसको इस तरह से भी समझना है कि ना मैं अब कर रहा हूँ, ये कौन कह रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना मैं अब कर रहा हूँ, और ना ही मैं मुस्तकबिल में करूंगा। ठीक है, वाला अना आबिद। ठीक है, और ना ही मैं मुस्तकबिल में करूंगा, ना तुम्हारे मौजूदा माबूदों की, ना तुम्हारे माजी के माबूदों की। तो ये हमने साथ साथ देखते जाना है। मुदारे है, और इसे हमने अगली 2 क्लासों में सीख भी लेना है। हम टीपीआई सीखेंगे, इसको कहते क्या है, इसमुल फाइल कहते हैं। हमारा टेबल भी कंप्लीट होता जाएगा, 21 के जो हमने पढ़ने वो पूरे हो जाएंगे, और हमें साथ साथ समझ आती जाएगी कि टेबल में ये लफ्ज कहाँ मौजूद है। ताबुदूना हम पढ़ चुके हैं, मुदारे है। अब तुम माजी की बात हो रही है। अल्लिमू उक्तुबू, यानी कि तुम सब इसको सिखा दो दूसरों को, और लिखो। अपने नोट्स बनाया करें, लिखा करें, छोटी छोटी चीजें जो आपको समझ आए, जो स्लाइड में ना हो, जो आपकी बुक्स में ना हो, जो ऐसे बार बार पढ़ाते हुए चीजें याद आ जाती हैं, तो वो हम साथ साथ बताते रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम भी ना तो मौजूदा बुतों की इबादत छोड़ोगे, और ना ही पुराने माबूदों की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब शुरू की थी तबलीग, तो आपके वालिद जो थे, उन्होंने सख्त मुखालफत की। उन्होंने कहा कि इब्राहिम, तुम अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ने वाले हो। तो नबियों ने, जितने भी अंबिया गुजरे, बहुत ही मेहनत से, बहुत तकालीफ बर्दाश्त करके हम तक इस्लाम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो सारा सिलसिला रहा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहरे नबूवत, खातमुन नबीयीन कह दिया गया, तो बड़ी मुश्किलात के साथ ही हम तक पहुंचा दी। तो अब हमारी बारी, हमें उम्मते वुस्ता कहा गया कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। इसलिए तुम इस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं। अल्लाह, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि तुम लोगों ने ना तो वो पुराने जो इबादत करते थे जिस तरह से, ना तो तुमने वो छोड़नी है, ना ही मौजूदा दौर में, ना ही तुम आइंदा कभी एक अल्लाह की इबादत करने वाले हो। अच्छा जी, अब है लकुम दीनुकुम वलिया दीन। जो ये जो आयत 2 मरतबा है ना, इसको हम इसी तरह से एक दफा में ही समझ लेंगे। फिर एंड वाली एक आयत है लकुम दीनुकुम वलिया दीन। अच्छा जी, लकुम को तो हम समझ लेते हैं, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम और लाना। ठीक है, दीनुकुम को भी हमने जितने भी अस्मा है उनके साथ जब जमायर जोड़ने हैं ना। अच्छा, ये चीज ये भी याद रखनी है कि छोटे छोटे लफ्ज देख के इसको एक नहीं समझना, इनके टुकड़ों को भी हमने साथ साथ देखते जाना है। क्योंकि ल या ली, इसको इकट्ठा लिया करें, क्योंकि जब ये हम मुतकल्लिम पर आते हैं ना, तो ये जेर के साथ आ जाता है। ठीक है, इसके साथ प्लस हुआ है जमीर, जैसे हु। अब ये पूरे, ये जो जमायर का टेबल और हरफ जर का टेबल, ये दो मिलकर एक लफ्ज बना है लहू। ठीक है, इसी तरह से दीन प्लस हु, बागे सो ऑन, इसको पूरा टेबल समझते जाए, करते जाए, तो ये दो दो टुकड़े हैं।
ठीक है, ये इस तरह से इसको नहीं हम समझेंगे कि एक एक लफ्ज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लकुम आया और दीनुकुम आया, कलमुकुम, इसको पूरा ऐसे बना के, और भी जवालुकुम, मोबाइल को जवाल कहते हैं, साअतुकुम, घड़ी को कहते हैं, तुम सबकी घड़ी। तो इनको इस तरह से देखा करें कि ये दो दो टुकड़ों के साथ, अब ये किसकी, किसको कहा जा रहा है, तुम। ठीक है, तुम सब ज्यादा लोग, तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए तुम्हारा दीन। इसके बाद आगे जो है वलिया, इसको भी समझते हैं। और इसको ली को यहीं पर हम समझ लेते हैं, जो ली है ना, ली, ये इसको जब हम टेबल करेंगे तो ली, लिया नहीं करना, ये ना हो कि हम कहें लहू लहुम लका लिया। ये जब भी मुतकल्लिम वाले या पर अपनी तरफ वाले सीगे के ऊपर जबर आती है, तो इसका नहव के हवाले से या फिर बलागा के हवाले से कोई ना कोई सबब होता है। ठीक है, जब भी किसी चीज में तब्दीली होती है, बगैर वजह की नहीं होती। ठीक है, बाज दफा किताबत है, बाज दफा ये खूबसूरती है, और बाज दफा ये कि इसके पीछे रीजन होगा, जो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे। ली कौन सा है, अपनी तरफ वाला, और ये जो या है, कभी कभार ये याद तब भी नजर आ जाती जब हमने अगले के साथ, अलिफ लाम वाले के साथ मिलाना है, और कभी कभी इसकी मजीद वजूहात जो हम बाद में इंशाल्लाह सीखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको इतना सा लफ्ज देकर पूछ लूं, वलिया, इसको आप ना भी देख रहे हो, वलिया, तो कितने टुकड़े कर लेंगे इसके? 3 टुकड़े देंगे। 3 टुकड़े। वाह, प्लस इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी बड़ी कामयाबी है, मेरी भी और हफ्सा की भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों की बेहतरीन मेहनत है। ठीक है, आप लोग इस तरह से समझते जाएं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है। और मेरे लिए आगे जो है दीनी। अच्छा, जब भी हम कसरा देखेंगे ना, कसरा, अगर मैं बार बार आपको बताती भी हूँ कि जब हम दोमा देखें ना, पेश या डबल पेश, दोमा तइन देखें, हम कहेंगे ये डिफॉल्ट हालत है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी हम डिटेल में ना भी जाए तो हम कहेंगे, जैसे दीनू लिखा हुआ है, ये इसकी डिफॉल्ट हालत है। अगर जबर नजर आ गई, जेर नजर आ गई, तो वजह लानी पड़ेगी। ठीक है, दीनी पे हमें क्या नजर आ रहा है, दीनी के नीचे हमें एक कसरा नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे कोई वजह नजर नहीं आ रही जाहरी तौर पर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये असल में दीनी कैसे है, जैसे आप टेबल में करें, दीनुहु दीनुहुम दीनुका दीनी दीनुकुम दीनुना। ठीक है, असल में ये लफ्ज यही है। ठीक है, ये है दीन प्लस ये, अब ये बन गया दीनी। यहां भी दीनी लिखा है ना। स्टॉप करते हैं हम, जब रुकते हैं तो हम कहते हैं कि अरबी में कोई लफ्ज साकिन से शुरू नहीं होता, मुतहर्रिक पर खत्म नहीं होता, तिलावत करते हुए। तो मुतहर्रिक पर हम इसको शुरू, सॉरी, हम इसको ऐसे मुतहर्रिक दीनी कह के स्टॉप नहीं कर सकते, हम इसको दीन करके पूरा करते हैं। असल में ये दीनी है। ये एक कसरा जो है, ये हमें बताती है कि यहाँ पर एक या छुपी हुई है। ठीक है, ये बात अगर आप लोगों को पहले से पता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आज आपने समझी है तो इसको बहुत ही तवज्जो से, गौर से देखें, समझ लें। कुरान मजीद में ये उस्लूब बार बार नजर आएगा। ठीक है, ये हमने शायद एक थोड़ी सी बात इस पर पहले भी की थी कि ये जो एक नून आता है ना, नून, ये नून आ जाता है एक विकाया का। बाज दफा ये हमें डबल नून के साथ नजर आएगा, और बाज दफा हमें ये एक या सिंगल के साथ नजर आ जाता है, कि इसमें फिर ये क्या किया जाता है, इस या को हजफ कर दिया जाता है, और ये जो कसरा है ये लगाई जाती है, ताकि ये पता चले दीनी, ये इसके कायम मुकाम है। वैसे यहाँ पर अगर लफ्ज होता तो दीनू होना चाहिए था। ठीक है, अगर डिफॉल्ट हालत में था तो इसको दीनू होना चाहिए था। और ये आप देखें कि ये जो दीनू 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 दीनू, लेकिन जब जब ये जाए मुतकल्लम जुटती है ना, तो ये या में उसको कसरा चाहिए होती है। हम कहते हैं कि जेर की दोस्ती जो है वो या के साथ है। ठीक है, पढ़ना भी आसान है। इसी तरह से पेश की जो दोस्ती वाव से है, इसी तरह से अलिफ की जो दोस्ती है वो जबर के साथ है।
اور یہ دوستی والی بات اس لیے بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ ان سے مدود بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم جو چھوٹی چھوٹی آپ کے ساتھ آسان لفظوں میں ٹپس وغیرہ آپ کو دیتے ہیں تو یہ یاد رکھنے کے لیے، تو اس کے بارے میں ہم نے پوچھنا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہم پوچھ سکتے ہیں آپ کے کہ دینی کے ٹکڑے کریں تو آپ نے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، یہ بالکل اسی طرح سے جیسے دینی لکھا ہوا ہے لیکن قرآن کی خطاطی ایسی ہے، قرآن کے الفاظ ایسے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ یا نہیں بلکہ اس کو اسی طرح سے زیر کے ساتھ ختم کیا، ٹھیک ہے؟ تو اب زیر آنے کی پیچھے میں کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، انشاءاللہ یہ وجوہات ہم سمجھنے لگ جائیں گے، پھر اس کو مزید اچھی طرح سے دیکھیں گے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، ایک یا چھپی ہوئی ہے، یہاں پر ٹکڑے کرنے ہوں، بعض دفعہ پتہ ہے کیا کیا جاتا ہے، یہ پوری آیت دی جاتی ہے اور اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس کو کیسے ٹکڑے کریں گے، 1+1، 1+1، 1+1+1، ٹھیک ہے؟ اور اس کے کیسے کریں گے، 1+1۔ یہ اتنے سارے ٹکڑے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹکڑے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک لفظ کو دیکھ کے فوراً سے آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کر لینا، تھوڑا سا اس کے بارے میں رک کر سوچنا ہے کہ اس کو ہم نے کلاس میں کیسے سیکھا تھا یا اس کو ہم کیسے ٹکڑے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مطلب اب یہ نہیں لیں گے کہ سارے مذہب برابر ہو کے، نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ کو روک دینا چاہیے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ بالکل بھی نہیں، یہ صرف مصالحت کی پیشکش میں جواب تھا کہ تمہارے لیے، کہ اب پتہ چل گیا کہ یہ ایسے انکار کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، جو تھے نا فاسقین تھے، 2 طرح کے تھے، وہ بھی نافرمانوں کا بھی 2 کا گروہ تھا۔ ایک وہ تھے کہ جو اس بات پر اڑ گئے تھے کہ ہم نے نہیں ہی ماننا، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر ہدایت دے دی تھی کہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اب یہ ان کے لیے جنہوں نے کہا کہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے آئے، ان کے جواب میں کہ اب یہ نہیں سمجھنے والے ماننے والے، تو ان کے لیے بس ان کا دین اور میرے لیے میرا دین۔ لیکن یہ نہیں ہوا تھا کہ اس صورت مبارکہ کے بعد آپ نے تبلیغ چھوڑ دی ہو یا آپ نے مزید کسی کو سکھایا نہ ہو، یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو اس بات پر عمل کرنے سے مکمل طور پر منکرین ہو گئے تھے۔ اچھا جی، کیا میں اس عمل پر کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں؟ نہیں کرتی تو ضرور کرنی ہے انشاءاللہ سے۔ اچھا جی، سورہ کافرون کا TPI کے ذریعے مؤثر استعمال دیکھیں، فعل ماضی ابدتم، مضارع اعبدو تعبدون، اور یہ جو کافرون عابدون اور عابدون، اس کو ہم نے سیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آگے ہم سیکھ لیں گے۔ ضمائر کون سے تھے اس میں، انا یوز ہوا، انتم یوز ہوا، اسی طرح سے لکم یوز ہوا اور لی یوز ہوا، جو کہ ابھی ہم نے جو آیت مبارکہ میں دیکھا لیا ہے۔ اسی طرح سے آپ سورہ ملک میں معیہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے ٹیبل میں نہیں اس کو ایسے زبریں خود سے نہیں لگانی، ٹھیک ہے؟ جو جس طرح سے اسی طرح سے ہم کریں گے۔ اچھا جی، سورہ کافرین موسٹلی ہمیں سب کو زیادہ تر یاد ہی ہوتی ہے، ہم 4 کل یاد کرتے ہیں، ہم اس میں یاد کر لیتے ہیں، لیکن ایک ٹپ بتائی جا رہی ہے آسانی کے لیے، جسے نہیں یاد وہ اس طرح یاد کر لیں کہ شروع میں خطاب ہے، اس کے بعد آج کی موجودہ دور کی بات، اس سے پھر جو ماضی گزر گیا اس کی بات، اور آخر میں آخری حتمی بات وہ کون سی ہے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اچھا جی، 1 لائنر اگر آپ نے اس کو پورے کو خلاصہ کر کے بتانا ہو تو دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں، خلاصے ضرور دیکھا کریں، اپنے پاس لکھ لیا کریں، یہ فاتحہ کا خلاصہ، یہ سورہ اخلاص کا خلاصہ، یہ سورہ ناس کا خلاصہ، تو سورہ کافرون کا خلاصہ لکھ لیں کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا جی، اب میں نے کیا کرنا ہے، اب آپ کے ساتھ دوسری سلائیڈ شیئر کرنی ہے، کیونکہ آج ذرا تھوڑا سا میرا کمپیوٹر پریشان کر رہا تھا مجھے، تو ابھی ہم جلدی سے اسے بی پارٹ کو بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، بریک ہم نہیں لیں گے بلکہ ہم ڈائریکٹلی اپنے لیسن پر آ جائیں گے، تاکہ ہم صرف میں آپ سے کہتی تھی 15 منٹ ہمیں دیا کریں، تاکہ ہم اپنی کلاس کو بہت اچھے سے صرف سلائیڈ پر نہیں بلکہ آپ کو کچھ مزید چیزیں بھی بتا دیا کریں۔ اچھا جی، آپ کو میری سلائیڈ شو ہونا شروع ہو گئی؟ جی ہوگا۔ چلیے،
अच्छा जी, 16 भी हमने क्या शुरू किया हुआ है, हमने फेल अमर और नहीं शुरू किए हुए, हमने कहा था इज अल इफ्ताह, और हमने एक कौन सा इफ अल, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें काम करने का हुक्म दिया जा रहा है, और फिर हमने नहीं वाला सीखा, ठीक है, इशारे भी, ये हमने इशारा नहीं वाला सीखा था। और इसको सीखते हम कैसे हैं, हम इसको सीखते हैं फेल मुदारे से ये वाले अल्फाज उठाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सीखना कैसे है, अच्छा जी, इसको हम करेंगे, सोचिए, देखिए, सुनिए, एक मिनट मैं इसको सही तरह से आपको टीकिया के साथ बताती हूँ। हम अपनी जरा इस बार को नीचे ले जाएं। अच्छा जी, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बतलाइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। किसी भी चीज को हम सबसे पहले सुनते हैं ना, फिर अच्छा देखने का भी शौक होता है, फिर हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसके बारे में हम अपने मुंह से बोलते हैं, दूसरों को बताते हैं। तो अब ये जो सारे इशारे और सब कुछ है, इसको जरा दिल से करना है, ठीक है, और मिलकर करना है। मिलकर, अभी फिजिकल क्लास हो तो हम सारे मिलके कर लें। आप ऐसा कर सकते हैं, मिरर के सामने कर सकते हैं, वीडियो में मैं अगर इशारे कर रही हूँ, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, इशारे किया करें। इशारों से होमवर्क आसान हो जाते हैं, इशारों से कुरान की आयत को समझना आसान हो जाता है। कभी यासीन पढ़ रहे हो आप, यासीन में मैं ऐसे इस तरह से बार बार आप लोगों को कहती होती हूँ, इसमें से मैंने खुद बड़े इशारे कर करके सीखा था, जहां सामने वाले की बात हो रही, जहां मेरी बात हो रही, जहां पर हम मुदारे में साइड पे जो हम इशारा करते हैं, जिसे हम कह देते हैं जमा गायब की बात, जमा वाहिद, सॉरी, गायब वाहिद की बात, तो ये सारी बड़ी अच्छी से हमें समझ आने लग जाती है। तो इशारे बहुत जरूरी हैं। फेल अमर का इशारा हमने सीखा, फेल नहीं का इशारा हमने सीखा। कलमे के 3 एग्जाम हैं, इसम, फेल, हर्फ, हर एक की दो दो बातें याद करनी है। किसी भी चीज का नाम, जगह का नाम, या किसी शहर का नाम, हर तरह के जो नाम और हर तरह की सिफात, इन्हें हम अस्मा कहते हैं। पहचान अल और तनवीन से हो जाती है। वाव नून या नून को इसलिए खास तौर पर यहाँ हम नहीं कहते क्योंकि वाव नून हमें नजर आने लग जाता है जब हम अपने मुदारे पर जाते हैं, या नून तो नहीं, वाव नून नजर आने लग जाता है। तो बाज़ दफा फिर ये कि इस कंफ्यूजन से बचने के लिए भी मोस्टली वाव नून को बीच में से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कहने से। अलिफ था जो हमने जमा मुअन्नस सीखी थी, एक चीज, और फिर जमा मुअन्नस हम जो लेफ्ट हैंड से इशारा करते हैं। फेल जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और जमाना भी पाया जाए। अब फेल अमर है, फेल है, तो इसमें भी एक जमाना है, क्योंकि जो आपके सामने मौजूद होगा आप उसी को हुक्म देंगे, ठीक है। हर्फ जो इसमें और फेलों को आपस में मिलाए, साथ तो हमने हर्फ जर कर लिए, ठीक है। अच्छा, अभी एक बात का ना आपने और भी ख्याल रखना, कहीं आपको अल नजर नहीं आएगा, तनवीन नजर नहीं आएगी, वावनू नजर ना आए, यानू नजर ना आए, लेकिन उसके बावजूद हम उसको इसम कह रहे होते हैं, जैसे गैर, ठीक है ना, एक लफ्ज है गैर। कहीं कहीं हम माँ को भी इसम कहेंगे, माँ को हम इसम कहते हैं, इंदा को इसम कहते हैं। इसमें ऐसी कोई निशानी तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये अस्मा है। फिर उसके पीछे फिर वजूहात हमें नजर आने लग जाती है, कुछ ये ज़ुरूफ होते हैं, इसी तरह से कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके बारे में हमें वैसे ही डिटेल पता ही होती है, कि जैसे अब मैं अपना नाम कहूँ नौरीन, आप लोगों के नाम है, तो ये अस्मा है, इनके अब ना भी अगर इन पे अल या तनवीन होगी तो हमें पता चलता है कि ये हमारे नाम है। अब आपने ये नहीं कहना कि आपके नाम में तो नौरीन में या नून था, तो मैं जमा तो नहीं हूं ना। तो वैसे हमें ये पता ही है कि नौरीन एक नाम ही है, ठीक है। तो इस तरह से भी हमने चीजों को समझना है। फेल माजी जो हो गया, ठीक है, हमने इशारा भी थोड़ा नीचे करना है। और ये जो अभी हो रहा है, चल रहा है, या फिर मुस्तकबिल में होना है, उसे हम फेल मुदारे कहेंगे। फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना, फेल नहीं को इसके साथ ही ऐड किया जाता है, क्योंकि इसमें भी हुक्म है, सिर्फ चीजों से मना करने का, ठीक है, इतना सा फर्क है। अच्छा जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह से कल की क्लास में सीख लिया था अमर और नहीं को बनाना। कैसे सीखा था, हमने कहा था कि मुदारे से हम सामने वाले की बात को लेके आए, ठीक है। सामने से जब हमने सामने के मुदारे से ये हमने निकाला ना, आप करते हो, जब इसको आप करो करना है ना, तो कैसे करना है, अलामत मुदारे, जिसको हमने यतान के साथ भी याद किया हुआ है, ठीक है। इसमें जो अलामत है जो इसको मुदारे शो करती है, उसको काट देना है, एंडिंग को हमने पुरसुकून कर देना है। अब ये इतना सा पढ़ा नहीं जा रहा था, ठीक है, ये हमारे पास आ गया था, इसको हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। शुरू भी साकिन से है, एंड भी, तो ये पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अरबी में कोई भी लफ्ज साकिन से शुरू नहीं होता। हमें जरूरत पड़ी एक हमजातुल वसल की, ये फटाफट हेल्प करने के लिए आ जाता है। हमने इसे एक
आरजी कसरा दी। ठीक है, तो ये बन गया इफ अल। जबकि इफ आलू हमने कैसे ये तफ आलूना से निकाला, बिल्कुल इसी तरह से मुदारे की अलामत को हमने गायब कर दिया और नून को ड्रॉप किया। जब नून ड्रॉप किया तो एक अलिफ आ जाता है हमारी मदद करने के लिए, ताकि हमें पता चले ये जमा का सीगा है। इस अलिफ को बिल्कुल नहीं भूलना जब हमने जमा बनानी है। अब ये यहाँ से कैसे बना है, ये बना है हमारे पास साकिन से शुरू होके ये बना है। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी तरह पे हमजातुल वसल ने आके हेल्प की और इसको कसरा लगाई, आरजी कसरा, तो ये बन गया इफ आलू। और जो मना करने वाला है ला तफ अल, ला तफ आलू, बिल्कुल इसी तरह से इसमें सिर्फ अलामत मुदारे को नहीं हटाया जाता है। ठीक है, एंडिंग बस उसी तरह से जैसे हमने अमर में की थी। तो हमने बनाया इफ अल इफ आलू, ला तफ अल, ला तफ आलू, इज अल इज आलू, ला तज अल, ला तज आलू। उंगलियां भी ज्यादा और कम खोलनी है। ठीक है, इसी तरह से इफ्ताह इफ्ताहू, ला तफ्ताह, ला तफ्ताहू। एंडिंग जो है, जो वो हम सिंगुलर कर रहे हैं उसमें सुकून देना है और हर सूरत देना है। ठीक है, ताकि हमें ये बहुत अच्छा सा याद हो जाए। इसको आप इक़रा इससे भी याद रखें। ठीक है, इक़रा उसमें भी आप देखें साकिन हो जाता है ना, उस तरह के टेबल भी हमने सीखने जिसमें हमजा आ जाया करता है। इसे हमने सीख लिया। आज हमने करना है, अच्छा इस ये जो आपके सामने आता है ना, एक ये जो फेल के 4 अहम नमूने, इसको ना स्क्रीनशॉट ले लिया अगर ये आपने हाथ से लिखे। और अब जैसे मैंने कहा था कि दो दो याद रखने, अब उसके साथ एक और मिलाएं। ये हमने 6 करने हैं पूरे। ठीक है, फतहा यफ्ताहु इफ्ताह, नसरा यंसुरु उनसुर, दरबा यद्रिबु इद्रिब, सामिआ यस्माउ इस्मा। आपको 3 में तो कसरा नजर आ रही है, आसानी हो गई। ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि 3 को हम शुरू कर रहे हैं, कसरा लगा रहे हैं। लेकिन ये जो है ना पेश, ये दोमा, इसकी दोस्ती हुई हुई है पेश के साथ ही। इसने इसको ये जो ना गोलमोल है, तो ये कहता है मुझे शुरू भी ऐसे ही किया जाए। ठीक है, तो इसने हमजातुल वसल भी जो लिया, इसने कहा कि मुझे यहाँ पर इन सुर नहीं चाहिए बल्कि उन सुर चाहिए। ये तो एक बात होगी, जैसे हम समझाने के लिए बता देते हैं कि अच्छा चलें, याद रह जाता है ना कुछ किसी ना किसी का बोला हुआ याद रह जाता है। तो इसको एक रूल भी है, एक कायदा भी है। वो क्या है कि आप तीसरे हर्फ पे चले जाएं। ये इसको जो है ना हमजतुल वसल को शामिल करके, इसको निकाल के नहीं। ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसी तरह इस्मा में जब हमारे पास तीसरे हर्फ पर फतहा हो या कसरा हो, जबर हो या जेर हो, दोनों सूरतों में हमजातुल वसल कसरा की हरकत कबूल करता है। लेकिन तीसरे हर्फ पर अगर हमें दोमा नजर आ गई, आंखें बंद करके हमजातुल वसल पर दोमा लगा दें। ठीक है, ये एक छोटा सा रूल है और ये बहुत काम आता है। इक़रा में भी देखिए तीसरे हर्फ पर रॉ के ऊपर फतहा है तो हमने कसरा लगा ली। अब जब जब आप कुरान मजीद में फेल अमर को देखेंगे ना, आपको फौरन से क्लिक करेगा। जब आपको तीसरे हर्फ पे दोमा नजर आएगी तो हमजातुल वसल पर भी आपने दोमा ही लगानी है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना, हम मिला के पढ़ रहे होते हैं, फिर हमें लगता है कि हमारा सांस टूट जाएगा, हम थोड़ा पीछे रोक देते हैं, फिर इयादा 2 अल्फाज पीछे से शुरू करते हैं। तो जब वो इयादा करेंगे तो बाज दफा अमर से इयादा शुरू हो जाता है। तो तब क्या हमने करना है, हमने अगर दोमा देखिए तीसरे हर्फ पर, तो खुद से जब लगाना पड़े तो दोमा को देखते हुए दोमा ही लगाएंगे, पेश को देखते हुए पेश लगेगी। लेकिन फतहा और कसरा, इन दोनों पर क्या होगा, इन दोनों में हमने फौरन से सिर्फ और सिर्फ कसरा लगानी है, फतहा किसी पर भी नहीं लगानी जब अमर आएगा। फतहा वाले अगर आगे जाके कहीं आपको मिले नजर आए तो उसकी पूरी पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से देखेंगे। नसरा नसरू, नसरा नसरू, नसरता नसरतु, नसरतुम नसरना। और अभी ये ना
ایک چیز اس میں ہم نے اور شامل کرنی ہے، نصر نا کے نیچے ہم نے ایک مؤنث ایڈ کرنی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم نے جلدی ہی کر لینی ہے۔ اس کے بعد ہے ینصرو ینصرونا، تنصرو انصرو تنصرونا، ننصرو انصر مدد کر۔ اب انصر میں ایک جو تم یا تو ہے وہ چھپا ہوا ہے، کیونکہ سامنے والے کو ہم دے رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں تو مدد کر، انصرو تم سب مدد کرو، ہم کہتے ہیں اقرا تو پڑھ، اس میں ایک تو موجود تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو انہوں نے کہا اقرا پڑھ، ٹھیک ہے، یا پڑھیے، ادب سے ہم اس کو پڑھیے بھی اس طرح سے بولتے ہیں نا، کیونکہ ہم تھوڑے اردو میں آپ جناب والا سیگا بھی لاتے ہیں نا، تو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو تھوڑا سا لمبا کیا کرے، 2 کاؤنٹ کیا کرے، کیونکہ یہاں پر جو مدود بن رہی تھی نا، خاص طور پر مد اصلی، تو کہتے ہیں کہ عربی بولنے والے سمجھنے والے کبھی بھی مد اصلی کی غلطی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب جمع کی جو نشانی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا جب کریں گے مد کے ساتھ پڑھیں گے تو سامنے والا اگر ٹیکسٹ نہیں بھی دیکھ رہا تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ انصر انصرو، لا تنصر لا تنصرو، مت مدد کرو۔ اب آپ کا ٹیبل جو ہے 6 آپ نے پہلی لائن سے سیکھ لیے سیگے، 6 دوسری لائن سے، 4 آپ نے تیسری لائن سے سیکھے ہوئے، انشاءاللہ اب ہم نے اس کے نیچے 3 سیگے اور ایک ایک سیگا ہم نے ماضی اور مضارع کا سیکھنا، پھر ہمارا ایک ٹیبل پورا مکمل ہو جائے گا۔ اچھا جی، انصر جواب مضارع سے آئے گا، سامنے والے کو حکم دیا تھا نا انصر مدد کر، تو فوراً سے ہم کیا کہیں گے انصرو۔ جب انصرو جواب دینا ہے نا تو اس کو ساکن نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، انصرو تم سب مدد کرو، ننصر ننصر ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے، بس اس کو سمپلی مدد کرتے ہیں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جواب بھی ہم نے دینے سیکھنے، ڈائلاگ ہے نا، سامنے والے کو جب حکم دیا تو اپنی طرف سے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ انتا کا جواب انا سے، انتم کا جواب نحنو سے۔ اب انتا اور یہ جو ہے انتم، اسی طرح سے انا اور نحنو، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جب ہم سامنے والے کی بات کر رہے ہیں انتا، تو اسی طرح سے ہم نے انصر کو لینا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک انتا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جو چھپے ہوئے کی بات کرتے ہیں نا، یہ آگے آپ قرآن پاک جہاں جہاں بھی آپ سیکھیں گرامر کے ساتھ، جہاں بھی آپ اس کو اینالائز کریں گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ کو یہ بات بار بار سننے کو ملے گی، بار بار آپ سمجھیں گے کہ اس میں ایک انتا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہا جا رہا ہے انصر زیدن، مدد کر زید کی، آنسر کیا ہونا چاہیے، ذرا مائک آن کر کے مجھے بتائیں۔ انصر زیدہ، انصر زیدن یعنی کہ تو مدد کر زید کی، آپ فٹافٹ کہیں گے نا ہاں میں مدد کرتا ہوں زید کی۔ انصرو زیدن، اب میں آپ تینوں سے کہہ رہی ہوں انصرو زیدن، سمجھ لیں ایک بچہ چھوٹا بال کے ساتھ کھیل رہا، بال اس کی کہیں پھنس گئی ہے، تو آپ کیا کہیں گے، ننصر نانصر زید، زیدن۔ کسی کو پتا بال کو کیا زیدن، کہتے ہیں عربی میں؟ نہیں اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ نے یہ لفظ کہیں سنا ہے قرۃ الارض، یہ آپ نے اردو میں سنا ہے قرۂ زمین ارض؟ ہے نا، قرۃ الارض، ہاں سنا ہے نا اردو میں، تو یہ جو جی زمین ہے نا یہ زمین کی گیند ہے، ٹھیک ہے، تو بال کو عربی میں کرہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، چلیں یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے یاد آ جاتی ہیں، بیچ میں میرا دل کرنے لگ جاتا ہے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں۔ اچھا جی، بالکل جیسے ہم نے عنصر بنایا تھا اسی طرح سے ہم نے اذکر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ مضارع کی جو علامت ہے اس کو ہم نے گرا دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ گرا دی، اسے ساکن کر دیا، یہ ہمارے پاس اتنا سا بچ گیا، ٹھیک ہے۔ اب پڑھ نہیں سکتے تو تیسرے حرف پر گئے، ایک حمزۃ الوصل لگا کے تیسرے حرف پہ جانا ہے، بار بار آپ کو کہہ رہی تیسرے حرف پر آپ نے زال سے شروع نہیں کرنا، حمزۃ الوصل لگانے کے بعد تیسرے پہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حمزۃ الوصل لگ گیا، یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، 1 2 3 بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تیسرے پر جیسے ہی دوما نظر آئی پہلے نے
خود بخود دمہ لینی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو پیش لینی ہے اس کو بھی ہم نے سمجھ لیا. اب یہ کیسے بنے گا؟ زکرا زکرو زکرتا زکرتو زکرتم زکرنا یذکرو یذکرونا تذکرو اذکرو تذکرونا نذکرو اذکر اذکرو. تو یاد کر, تم سب یاد کرو. یہ جو تو اور تم ہے نا, اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ یہاں پر ہم نے انتا اذکر نہیں پڑھا ہوا نا. تو جب ہم کہیں گے نا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے, یہ بات موجود ہے کہ اس کے اندر ایک انتا ہے. تو لا تذکر لا تذکرو, مت ذکر کر, تم سب مت ذکر کرو. ٹھیک ہے, لا تذکر لا تذکرو. اچھا جی, ایک کوئی سسٹر اس سے اگلا والا پڑھیں گی. ٹھیک ہے, میں اگلا نکالتی ہوں ٹیبل. ماضی سے شروع کرتے ہوئے آپ اس کو لے آئیں فعل نہیں تک. اذکر اذکرو, یہ ہم یہ بھی کر لیتے ہیں, اذکر اذکرو اذکرو نذکرو. یہ انشاءاللہ جب ہم عید کے بعد پورا مکمل طور پہ کریں گے نا اسائنمنٹ کے ساتھ, تو یہ بہت اچھی ہماری پریکٹس ہو جائے گی. یہاں ایک قابل ذکر بات دیکھ لیجئے کہ یہ جو عارضی کسرہ ہے نا, یہ فٹافٹ ہیلپ کرنے آ جاتی ہے. یہ بڑی ہی ہیلپنگ ہوتی ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ جب ہمیں حمزۃ الوصل کے ساتھ اگلا لفظ نظر آ جائے, ملانا پڑے, تو یہ اصل میں اگر اس کو توڑ کر پڑھیں گے نا تو یہ اذکر ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ اذکر ہے اور یہ اللہ کے پر فتح. ٹھیک ہے, یعنی کہ تو ذکر کر اللہ کا. اب یہ اذکر اللہ ٹوٹ جاتا ہے نا, تو عربی کو ملا ملا کر پڑھتے ہیں, تو ملانے کے لیے ایک عارضی کسرہ ہماری ہیلپ کر رہی ہے. اذکر اللہ. ٹھیک ہے, اذکر اللہ. اب چونکہ ہم نے ساکن کو خود سے یہ کسرہ دیا, تو ہمیں فٹافٹ اس کی وجہ ڈھونڈنی پڑی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کے بعد والا جو اسم تھا, اسے ملانے کے لیے ہمیں ایک حرکت چاہیے تھی. تو وہ حرکت نہ تو فتحہ ہوگی نہ وہ ضمہ ہوگی, بلکہ یہ ایک عارضی کسرہ, عارضی زیر کہتے ہیں اس کو. یہ ہماری ہیلپ کرے گی. جواب کیا ہوگا؟ اذکر اللہ اذکر اللہ. دیکھیں اب یہاں پر ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ یہ جو ضمہ ہے یہ مل جاتی ہے اس کے ساتھ. اذکر اللہ, تم سب ذکر کرو اللہ کا. تو آپ کیسے کہیں گے؟ نذکر اذکروا اللہ اذکر اللہ. ٹھیک ہے, نذکر اب یہ اس کو بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا سیکھا نا کہ جس پر اثر پڑتا ہے اس کے اوپر فتح آ جاتی ہے. اچھا جی, اس کو بھی ایک میں آپ کو چاہے عید کے بعد ہی سمجھاؤں, آپ کو بہت اچھے سے اس کی تیاری کراؤں گی کہ انشاءاللہ یہ ہم نے کیسے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں یاد بھی رہے. ٹھیک ہے, کوئی ایک سسٹر ہے تو ہوم ورک اس کو پڑھ لیں ٹیبل کو. عبادہ, اس نے عبادت کی. ترجمے کے بغیر پڑھ لیں. اچھا, عبادہ عبدو عبادت نہیں, عبد ابتا ابتا, بار بار کریں, ابتا ابتو ابتا ابتو. عبدت عبدت عبدتم عبدنا. یعبدو یعبدون تعبدو اعبدو تعبدون نعبدو. اعبد اعبدو لا تعبد لا تعبدو. الحمدللہ الحمدللہ. اب آپ قرآن پاک میں جہاں کہیں نظر آئے نا اس طرح کا لفظ, آپ دیکھیں کہ اینڈ سے ساکن بھی ہے اور ایک حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے, تو یہ پڑھنے کا بھی بہت مزہ آتا ہے, سمجھنے کا. ٹھیک ہے کیا جی؟ اچھا جی, یہ میرا بیک ٹو بیک چلا گیا اس کو. اچھا جی, چونکہ خلق ہم کہتے ہیں نا پیدا کرنا, خلقت, یہ صرف اللہ کا کام ہے, اس لیے ہم اس کی امر اور نہیں کی پریکٹس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو اخلق اخلقو لا تخلق لا تخلقو, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پیدا کر, تو وہ آگے سے کہے کہ ہاں میں پیدا کرتا ہوں, کیونکہ پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے. اخلق اخلقو لا تخلق لا تخلقو. بس اس کو بہت اچھا سا یاد کر لیں کہ جو اس کا واحد والا سیغہ ہے, سنگولر والا, وہ ساکن پہ ختم کرنا ہے, جمع والا واو الف پہ. بالکل اسی طرح سے آپ نے جو نفی والے ہیں فعل امر اور نہیں والے جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے لا تخلق لا تخلق, لیکن جواب میں اخلقو. ٹھیک ہے, جواب ہم نے اس لیے یاد رکھنے کے لیے مزید آپ اس کو سمجھ لیں, جواب ہم نے ہمیشہ مضارع سے اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سامنے والے کو حکم دے رہا تو وہ ماضی میں تو جا کے نہیں کہے گا نا کہ اچھا
میں نے کیا تھا، پہلے والا کیا قبول نہیں ہو رہا، جب آج کی بات ہے تو یہ آج ہی کرنا ہے کام. بس اس کو یاد رکھ لیں کہ فعل امر اور فعل نہیں کا جواب ہم نے دینا ہے مضارع سے. اچھا آپ کے سامنے ایک سوال، ان کا معنی یاد ہے؟ جی ہاں جی اگر کسی کو ان کا معنی یاد ہے تو بتائیں، اور اگر نہیں یاد تو اگر میں کہوں انشاءاللہ پھر یاد آ جاتا ہے اگر فوراً؟ اللہ نے چاہا. اگر چاہا اللہ نے، اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کو جب ہم فریز کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں نا تو ہمیں یاد آ جاتی، ان کا معنی بھی یاد آ جاتا ہے، شاء کا معنی بھی یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، مثالوں کے ذریعے بہت بہتر ہوتا ہے کہ ہم مثالوں کے ساتھ یاد کر لیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو معنی ویسے نہیں یاد رہتا نا، انشاءاللہ کہیں گے تو فوراً سے کلک ہو جائے گا، یہ آپس میں نا گڑبڑ نہیں ہوں گے الفاظ. الحمدللہ سے آج ہم نے سبق نمبر 16 کا اختتام کیا. 194 194 نئے الفاظ سیکھے جو کہ 38,531 مرتبہ قرآن میں آئے. 38,531 جو صرف ہم نے آج کے لیسن میں کیے، وہاں تک ہم نے جب پہنچایا. ٹھیک ہے. آج ہم نے سبق نمبر 16 پر تقریباً 9 یا 8 ایسے لفظ سیکھے تھے جن کو ہم نے پہلے لیسن سے لے کر اب تک جب ملایا تو 232 الفاظ جو سیکھنے ہیں ان میں سے 194 الفاظ ہم نے سیکھ لیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اپنے انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا، یہ پھول آپ لے لیں. ربی زدنی علما روزانہ کی دعاؤں میں شامل کریں. اچھا جی، پاکٹ بک کو ضرور دیکھا کریں. ٹیچر بننا ہے، آج کل ٹریننگ شروع ہو رہی ہے، اپریل میں 3 دن کی ٹریننگ ہے، لیکن اس سے پہلے موسٹلی کیا ہے تو یہ دیا جاتا ہے کہ آپ QC1 کر کے ٹریننگ کر لیں. لیکن اگر آپ QC2 یا 3 کے بعد کریں گے تو آپ کو اس کے بینیفٹ زیادہ ہوں گے، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، پڑھانا بھی زیادہ آسان ہوگا اور اس ٹریننگ کو سمجھنا بھی زیادہ آسان ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ جو آخر میں ہم دعا پڑھتے ہیں یہ کفارہ مجلس کی دعا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. چلے جی، سب کو اپنی وعلیکم دعا میں یاد السلام رکھے، ورحمۃ اللہ خاص طور پر وبرکاتہ. مسلمان جس مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. تو ضرور آمین. بھی ضرور سب کے لیے، سب مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں خاص